गुड मॉर्निंग। आज आपका क्लास 10th का मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स जो कि चैप्टर 5th है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। उससे पहले जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और उनको शेयर करें। ठीक है, एंड तक देखें इस वीडियो को। चलिए शुरू करते चैप्टर को। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मेटल्स डेली लाइफ के लिए हमारे इम्पोर्टेंट है। वी यूज़ मेटल्स इन अवर डेली लाइफ and the metals are the indispensable parts of our life. So we are using various types of metals like iron, steel and aluminium. So first question is that where does these metals comes? So the metals come from earth crust that is made up of different minerals embedded in the rocks. metals जो हैं वो अर्थ क्रस्ट से आते हैं, जिसमें जो कि बनते हैं अलग अलग मिनरल से जो कि रॉक्स में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। इसका मीनिंग ये है कि मिनरल्स हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना हम रह नहीं सकेंगे। ठीक है ना, इट मीन्स विदाउट मिनरल्स वी आर अनेबल टू डू आवर डेली एक्टिविटीज़। सम ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ जैसे एवरीथिंग फ्रॉम पिन टू टावरिंग बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। कुछ भी चीज़ हो जाए, चाहे पिन हो, चाहे बिल्डिंग बनाने के लिए हमें आरसीसी चाहिए होती है, ये सब की सब मिनरल से ही बनते हैं। ठीक है, लाइक रेलवे लाइंस, कार, बसेस, फूड कंटेन्स मिनरल। रेलवे लाइंस है मिनरल से बनी हुई, कार, बस ये सब मिनरल से बने हुए। इवन आवर फूड ऑल्सो कंटेन्स सम पार्ट्स ऑफ मिनरल्स। क्लियर, स्पिनच, लाइक स्पिनच हैव आयरन इन इट, है ना। जिनको अनीमिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनच खाना चाहिए, पालक उसको ज़्यादा ज़्यादा खाना चाहिए। Clear? Now let us study about toothpaste and minerals. We use toothpaste to clean our teeth, and in this toothpaste we have added some mineral also like silica, limestone, aluminium oxide and phosphate minerals. They all are the cleaning agents. ये सब के सब क्या है, ये cleaning agents है, ये सब clean करेंगे अपने teeth को। Now we are using fluoride इन टूथपेस्ट। फ्लोराइड रिड्यूस कैविटीज़ इन योर टीथ। ठीक है ना, फ्लोराइड जो है वो टीथ में जो कैविटीज़ है उसको रिड्यूस करता है। फ्लोराइड कहाँ से मिलेगा? इट इज़ वी ऑब्टेन फ्लोराइड फ्रॉम फ्लोराइड मिनरल्स। क्लियर। नाउ वी हैव यूजिंग टूथपेस्ट एज वाइट पेस्ट। तो वाइट पेस्ट जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ टाइटेनियम, एंड टाइटेनियम इज़ फाउंड फ्रॉम द मिनरल रूटाइल, लिमेनाइट एंड एंटीज। Clear? Now another thing is we are using mica. Mica sparkles होता है, sparkles होते हैं इसमें। And then plastic, the tube that is made from plastic, we obtain plastic from the petroleum, and petroleum again it is a mineral. It means everything in the environment or everything that we use are minerals. Okay, so next is human need minerals. 0.3% of total nutrients we need minerals. Clear? It means in our food we need 0.3% total nutrients in daily. It means if this minerals are absent, human unable to utilize foodstuffs. We are unable to digest our foodstuff. Clear? हम अपने फूड स्टफ्स को, जो भी हमने फूड खाया है, जो हमने ईट किया है, हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर मिनरल अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा तो। ठीक है ना, it means with the help of minerals we digest our food. Clear? Now what is mineral? Mineral are the homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure. Minerals क्या है? homogeneous naturally occurring substance है जिसका definable internal structure होता है। Clear? Rocks, what are rocks? Minerals हमें कहाँ मिलेंगे? We found minerals in the rock deposits. So we have to understand what is rocks. Rock is a combination of homogeneous substance, clear, called minerals. Rock क्या है? combination homogeneous substance का, जिसको हम क्या कहते हैं? mineral कहते हैं। Limestone, it is a single mineral. Then so far we have identified 2000 minerals. Clear? So far we have identified 2000 minerals. Now in study point of view,
how geographer see a mineral and how geologists see mineral. Clear? We have to look at the both of the point of views. Okay, number one is geographer. As a part of the earth crust for better understanding of landform, geographers saw mineral as a part of earth crust. It means mineral is a part of the earth crust, and and geographers study mineral because they want to study the landforms. They wanted to understand about the landforms. जोग्राफर जो होता है, जो एक जोग्राफर होगा, जो एक भूगोलवेत्ता होगा, जो भूगोल पढ़ता है, जो जोग्राफी पढ़ेगा, वो क्या करेगा, वो क्योंकि मिनरल जो होता है वो अर्थ क्रस्ट का एक पार्ट है, तो वो केवल मिनरल को इसलिए पढ़ता है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके कि लैंड फॉर्म कैसा है. क्लियर है? बट जियोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द मिनरल्स, देयर एज एंड फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन. जबकि जो जियोलॉजिस्ट होगा, जो केवल और केवल अर्थ की स्टडी कर रहा है, ठीक है ना, वो इंटरेस्ट किस में होगा, वो फॉर्मेशन में होगा मिनरल्स के और उनके एज के, उनकी फिजिकल और उनके केमिकल कंपोजिशन के. क्लियर? नाउ वी हैव टू लुक एट द क्लासिफिकेशंस ऑफ द मिनरल्स. सो स्टूडेंट्स, minerals classified into three types: metallic, non-metallic and energy minerals. Clear? So first we look at the metallic minerals. In metallic minerals, again it's had three parts: ferrous, non-ferrous and precious. In ferrous mineral, ferrous means the mineral that contains iron. ऐसे मिनरल जिनमें क्या होंगे, आयरन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, फेरस कहेंगे. देन नॉन फेरस मिनरल लाइक कॉपर, लीड, टिन. नॉन फेरस मीन्स द मिनरल दैट डज नॉट कंटेन आयरन. कॉपर हो गया, लीड हो गया और टिन हो गया. क्लियर हो गया? देन थर्ड वन इज प्रीसियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर. दे आर वेरी मोस्ट प्रीसियस मेटल्स. दे आर ह्यूज डिमांड इन द वुमेन्स अबाउट गोल्ड. क्लियर? सेकेंड इज नॉन मेटलिक. ये नॉन मेटलिक है लाइक माइका, सॉल्ट, पोटाश एंड सल्फर. देन एनर्जी मिनरल्स. वी आर यूजिंग एनर्जी मिनरल्स टू रन अवर vehicles, to run factories. Okay, so coal, petroleum and natural gas, these are the energy minerals. Now look at where these minerals found on the earth. Okay, ये minerals कहाँ मिलेंगे, occurrence देखिए, mode of occurrence of the minerals. ठीक है, minerals, we found minerals in the mixed form, that is ores. We found minerals in the ore forms. Ore is a mixed form of the minerals. It means minerals found with impurities, and we have to refine that minerals from that ore. Okay, so number one mode is igneous and metamorphic rocks. We found minerals in cracks, cervix, faults and joints. ठीक है ना, हमें कहाँ मिलेंगे ये igneous और metamorphic rocks में? हमें cracks में मिलते हैं, cervix में मिलते हैं, fault में मिलते हैं, joints में मिलते हैं. क्लियर है? तो just like when volcanic eruption take place, lots of minerals from the earth surface comes out of the volcano in the form of lava. Okay, and this lava gets solid in interior part of the earth, maybe, or outer part of the earth. Clear? तो ये हमें क्रैक्स पे मिल सकते हैं. समटाइम्स दे गेट सॉलिड इनटू क्रैक्स ऑल्सो. ओके, फॉल्ट्स में मिल सकते हैं, जॉइंट में मिलते हैं. Veins are the small occurrence where minerals found. Lodes, they are the larger occurrence where minerals found. So mineral found in liquid, molten and gas. Okay, so they comes upward toward the earth crust, then solidifies and cool down. Okay, and then we extract that minerals from their ores. Okay, like tin, copper, zinc, they are found in veins and the lodes. क्लियर हो गया? ठीक है. द नेक्स्ट मोड इज सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स में भी मिलते हैं. द मिनरल्स फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, दे आर फाउंड इन बेड्स एंड लेयर्स. ये बेड्स और लेयर्स में मिलेंगे. ठीक है ना, लेयर्स होती है कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे मैंने बना रखी है, ये लेयर्स है. ठीक है ना. सो रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा. इट मीन्स वी फाउंड दिस minerals in beds and layers because of the result of the deposition in the horizontal strata, like gypsum, potash and salt. Next is
Next mode is decomposition of surface rocks. Residual mass of weathered material containing ore. ओके जो वेदर्ड मटेरियल जो होता है, यानी कि जो वेदरिंग आपको पता होगा, ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ड्यू टू द एक्शंस ऑफ द विंड, क्लाइमेट, विंड, टेम्परेचर एंड रेनफॉल. तो ये जो तीन चीज़ इनके एक्शन से जब रॉक्स टूटते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, उससे जो पीछे रेसिडुअल बचता है उसमें से जो भी आयरन मतलब जो भी मिनरल निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल बॉक्साइट है. बॉक्साइट एक मिनरल है दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द वेदर मटेरियल. ओके. नेक्स्ट मोड इज alluvial deposits. Some minerals we found in the alluvial deposit also, like the sands of the valley, base of the hills, known as placid deposits. इनको हम placid deposits कहते हैं. Clear है? Like example is gold, silver, tin and platinum. These are the most valuable minerals we found in alluvial deposits. Clear? So next one is ocean water. ठीक है ना. Ocean water, we found some minerals below ocean water, and they are the vast quantity, but they are dispersed undistributedly. Okay, unevenly distributed on the lands, on the ocean water land surface. Okay, so common salt, magnesium and bromine, these are the minerals we found in the surface of the ocean floor. Clear? So minerals in India, उड़ीसा है 52% ऑफ मिनरल, छत्तीसगढ़ 16%, कर्नाटक 14%, झारखंड 11%, अदर्स आर 7%. क्लियर? So let's look at the distributions of minerals. Some important minerals like ferrous minerals. Iron. Iron is a big backbone of the basic industry because it provides the raw material to other industries. Clear? So India has a rich quality of iron ore, and we have magnetite type of iron ore that is best quality iron ore, and these type of iron ore used in the electric industries. Okay. Next is hematite. Hematite contains 50 to 60% iron content in its ore. Okay, so it's main belt of the main mines, or what we call belt of the iron ore is Odisha Jharkhand belt. In this mine we mined hematite type of ore, that is Badampahar mines, that is Mayurbhanj and Kendujhar districts. Then Durg, Bastar, Chandrapur belt. This belt lies in Chhattisgarh and Maharashtra, and some parts lies in the Karnataka. We found hematite types of ore in Baladela range in Bastar district. Okay. Then we export to Japan, South Korea via Visakhapatnam port. यहाँ से जो भी हेमेटाइट ओर मिलेगा, जो भी हेमेटाइट आयरन मिलता है, उसे हम जापान को, साउथ कोरिया को विशाखापट्टनम पोर्ट से क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं. क्लियर? नेक्स्ट बेल्ट इज बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, टुमकुरू बेल्ट. ठीक है. इन दिस बेल्ट कुदेरमुख दैट लाइज इन द वेस्टर्न घाट. इट लुक लाइक ए हॉर्स फेस, दैट्स व्हाई इट्स कुदरे इन कर्नाटक मीन्स हॉर्स. ओके, it's like mukh means mouth, so it looked like horse mouth, lies in the western Ghat, and we found some minerals here also. Then Maharashtra Goa belt, Goa and Ratnagiri, and the iron that we found here we export from Marma Goa port. Okay. Then next mineral is manganese. Manganese used in steel manufacturing. It means 10 kg manganese we add to get 1 ton of steel. क्लियर है? 10 kg मैग्नीज हम ऐड करेंगे तो 1 ton of steel हमें उसमें से मिलता है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, लेट्स लुक एट द सम नॉन फेरस मिनरल्स. नंबर 1 इज कॉपर. इट इज़ वी हैव क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व्स ऑफ द कॉपर. कॉपर के रिजर्व में हम थोड़े कमी है, हमारे पास ज़्यादा नहीं है. इट इज़ ए मेलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर. यू ऑल नो डेट व्हाट इज़ मेलेबल. मेलेबल का मतलब होता है उसको शीट, इनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कन्वर्ट डक्टिलिटी मीन्स वी कैन कन्वर्ट इट इनटू वायर्स, एंड दीज आर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इट मीन्स इट पासेज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. ओके, so that's why we use copper in electrical cables, electronics and chemical industries. So we mine
copper from Balaghat mine that lies in Madhya Pradesh. Then Khetri, Rajasthan, and Jhunjhunu district. Clear? Very famous mine. And Jhunjhunu is also known as Tambra Nagri, Tamba city, copper city. Okay. Next, non-ferrous mineral is bauxite. It's a clay-like substance that have alumina and later we extract aluminium from that. Clear है? ये क्ले मिट्टी जैसा सब्सटेंस होता है जिसमें एल्यूमिना होता है जिससे हम बाद में एल्यूमिनियम निकालते हैं. वी फाउंड बॉक्साइट फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू, मैकाल हिल्स, बिलासपुर, कटनी. क्लियर है? ओडिशा कम फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द बॉक्साइट इन इंडिया. ओडिशा नंबर फर्स्ट में आता है बॉक्साइट के प्रोडक्शन में. सो सम नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर माइका. माइका स्प्लिट ईजिली इनटू शीट्स. माइका ईजिली शीट्स में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है. एंड वी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज. इसके इलेक्ट्रॉनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती हैं, इस वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही चमकीला टाइप का एक आता है जिसको बच्चे जो हैं बचपन में क्या कॉपी के अंदर डालते थे. हमने भी यूज़ किया है इसको. कॉपी में रख देते थे, बोलते थे इससे विद्या आएगी. एक ऐसी एक मान्यता थी, मानते थे बच्चे. ठीक है ना? तो बहुत बारीक बारीक शीट इसकी निकाल सकते हैं. कुछ 1 सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर जो लेयर अगर हम कहें उसमें थाउजेंड्स ऑफ शीट्स उसकी जो है निकाली जा सकती है. सो इट मेनली वी ऑब्टेन माइका मेनली फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू, कोदरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट एंड फ्रॉम राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट. क्लियर? नेक्स्ट इज रॉक मिनरल्स. रॉक मिनरल्स like limestone, these are found from sedimentary rock deposits. These are the basic raw material for the cement industries. Cement industries के लिए basic raw material है ये. Clear है? Then what are the hazards of the mining? Mining के क्या hazards हो सकते हैं? Hazards का मतलब mining के नुकसान क्या हो सकते हैं? Number of pulmonary diseases. If we inhale dust and noxious fumes, ठीक है ना, अगर हम डस्ट गंदगी है, noxious fumes अगर इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो पल्मोनरी डिजीज़ जो है वो हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं. ठीक है? देन कोलैप्सिंग मिनरल रूफ्स, माइनिंग रूफ्स. जब हम माइनिंग करते हैं तो भी डीप माइनिंग करनी पड़ती है. ओके, तो समटाइम्स वी डग डीप इनटू द अर्थ क्रस्ट. देयर इज़ ऑलवेज अ थ्रेटनिंग ऑफ द कोलैप्सिंग माइनिंग रूफ. छत ऊपर माइनिंग की छत गिरने का हमेशा एक डर रहता है. ठीक है ना? समटाइम्स दे गेट फायर इन द कोल माइन. कभी कभी कोल माइन के अंदर भी आग लग जाती है. ठीक है ना? उस समय जो अंदर लोग हो सकते हैं वो जल सकते हैं, मर सकते हैं. दिस इज़ वेरी खतरनाक चीज़ है ना, हैजार्डस थिंग्स. इट ऑल्सो कॉज वाटर पॉल्यूशन. देन सॉइल इट ऑल्सो पॉल्यूट सॉइल पॉल्यूशन व्हेन वी डंप दैट टाइप ऑफ वेस्ट ऑन द ग्राउंड. क्लियर? देन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. हाउ वी कंजर्व मिनरल्स? 1% available of the earth crust. It means minerals are only 1% available of the earth crust and we rapidly consuming it. Clear? It takes millions of years to renew. It means they are considered as non-renewable resources. Okay, and because we are using rapidly, we are consuming rapidly these types of minerals and they are non-renewable. It means we are creating imbalance in between them. ठीक है ना? हम इनबैलेंस बना रहे हैं. व्हाट आर द एफर्ट्स वी हैव टू यूज़? वी हैव टू यूज़ अवर रिसोर्स इन प्लांट मैनर. प्लांट मैनर में हमें अपने रिसोर्स को यूज़ करना चाहिए. वी हैव टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी. इट मीन्स वी हैव टू यूज़ लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट. टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने से क्या होगा कि जो लो ग्रेड का जो ओर मिल रहा है उसको हम लो कॉस्ट में भी इम्प्रूव यूज़ कर सकते हैं. क्लियर? देन वी हैव टू रिसाइकल्स मेटल यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्सटीट्यूट. स्क्रैप मेटल्स को भी यूज़ कर सकते हैं या कोई अदर सब्सटीट्यूट यूज़ करें. क्लियर? नाउ लुक एट द एनर्जी रिसोर्सेज. एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग, लाइक हीटिंग. ओके, सो द मेन एनर्जी गिविंग resources are coal, petroleum, natural gas and uranium. Energy are two types: conventional and non-conventional energy. Clear? Conventional energy is type of energy that we are using from traditions, using from long time. And non-conventional energy are the new sources like solar energy, wind energy. Clear? So let's look at the conventional source of energy. Number one is coal. Coal is a fossil fuel and it takes millions of years to form coal. Clear? Used in energy generation
टू सप्लाई एनर्जी टू द इंडस्ट्रीज, एनर्जी जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इन थर्मल पावर प्लांट्स सप्लाई करते हैं एनर्जी इंडस्ट्रीज़ को। टाइप्स वी हैव फाउंड 3 टाइप्स ऑफ कोल। नंबर इज लिग्नाइट, लो ग्रेड ब्राउन कोल, नेवली तमिलनाडु में मिलता है। देन बिटुमिनस कोल मोस्ट पॉपुलर कोल है, यूज इन स्मेल्टिंग आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस, आयरन को स्मेल्ट करने में यूज़ करता है, ठीक है ना। देन एंथ्रासाइट कोल, इट इज़ द हाइएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, गिव लेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस स्मोक। क्लियर। स्टेट्स दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, गोदावरी महानदी, सोन वर्धा वैली। क्लियर। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. Petroleum is a fuel we use it to give heat and light, and it is also used as lubricant for machinery. ठीक है. It is nodal industries for petroleum refineries. Petroleum refinery जो है एक nodal industries होती है. Clear. So oil bearing लेयर कौन सी होंगी? सैंडस्टोन और लाइमस्टोन. जो लाइमस्टोन जो सैंडस्टोन है ये ऑयल बेरिंग लेयर होती है. इसका मतलब सैंडस्टोन लाइमस्टोन जहाँ भी होंगे वहाँ पे ऑयल आपको मिलेगा. ऑयल्स फाउंड इन द फॉल्ट ट्रैप्स. ओके. गैस, समटाइम गैस also found with oil, but they are found above oil. So most important petroleum reserves in India are Mumbai High, then Gujarat, Assam. Assam is the oldest oil producing state. In Assam, Digboi, Naharkatia, Moharan, Hugrijan. These are the places where oil found. Clear? Let's look at the natural gas reserve. Natural gas is clean energy resource. It is environmental friendly. Uses of natural gas. The natural gas used in petrochemical industries. Clear? It is environment friendly fuel. It emits low carbon. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम इमिट करती है. ठीक है ना. We obtain natural gas from Krishna Godavari basin, Mumbai High, Gulf of Khambat and Andaman Nicobar. क्लियर है. यहाँ से ये स्टेट्स है, ये प्लेसेस है जहाँ से हमें इनके रिजर्व्स मिल जाते हैं. देन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइंस दैट इज़ 1700 किलोमीटर्स लॉन्ग बनाई गई हैं. गैस पाइपलाइन बनाई गई है. ठीक है ना. और ये क्या करेगी? मुंबई हाई से लिंक है ये. ठीक है ना. ये मुंबई हाई से क्या है? लिंक है. और यहीं से क्या होता है कि इनको गैस सप्लाई होती है. और ये दिल्ली तक, दिल्ली हो गई, जगदीशपुर हो गया, हजीरा हो गया, अंता हो गया राजस्थान में, वहाँ पे गैस सप्लाई यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में पाइपलाइन के थ्रू की जाती है. क्लियर है. चलिए. It used in power and fertilizer industries, and nowadays we are using natural gas as a compressed natural gas for the vehicles. Clear? Electricity by running water. Electricity, we get electricity by running water, and running water drive turbine to generate hydroelectricity. Clear? And by another method to get electricity by burning other fuels like coal, petroleum and natural gas to drive turbines to produce thermal electricity. ठीक है ना. अगर हम कोल को, पेट्रोलियम को और दूसरे नेचुरल गैस को यूज़ करके बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसको हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. और अगर हम रनिंग वाटर की एनर्जी को यूज़ करके ड्राइव करेंगे टर्बाइन को जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, तब उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे. ठीक है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. Hydroelectricity, we get this electricity by fast flowing water which drive the turbine, and turbine is linked to the generator, and generator convert that energy into electricity. Clear? It is renewable resource, and we in India there are many hydropower plants like Bhakra Nangar, Damodar Valley Corporation and Kopili hydro project that is in Assam in the Kopili river. Bhakra Nangal dam or project lies on the Satluj river, and Damodar Valley Corporation lies on the Damodar river in the West Bengal. ठीक है. Now thermal electricity. Thermal electricity generated by coal, petroleum and natural gas. These are the non-renewable fossil fuel. Clear? और ये ये बहुत महंगी होती है कॉस्ट में, ये नॉन रिन्यूएबल है. ठीक है ना. Now let's look at some non-conventional source of energy.
energy that is generated by using renewable resources such as solar energy, wind energy, tidal energy, biomass and energy from the waste material are called नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी जो कि हम जनरेट करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करके, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो जाएगी, बायोमास है, एनर्जी जो हमें वेस्ट मटेरियल से मिलती है, ठीक है, इन्हें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम कहते हैं। क्लियर है? तो लेट्स लुक एट सम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नंबर 1 न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, कहाँ से मिलेगी? तो व्हेन वी अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स वी गेट मोर हीट एंड वी यूज़ दिस हीट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जब भी हम स्ट्रक्चर जो होगा ना, यूरेनियम जो भी इसका मिनरल है, उसके एटम को जब तोड़ते हैं तो उसके एटम को तोड़ने से उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है ना। उसी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। मेन फ्यूल ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी इज यूरेनियम एंड थोरियम। क्लियर? वी गेट थोरियम एंड यूरेनियम फ्रॉम झारखंड एंड अरावली रेंज। इन केरला वी फाउंड थोरियम फ्रॉम मोनोजाइट सैंड। केरला के अंदर मोनोजाइट सैंड से क्या मिलता है? यूरेनियम मिलता है, ठीक है। एंड सोलर एनर्जी। India is a tropical country. It means there is a huge possibility to tapping solar energy. ठीक है ना? Most of the day of the year we get good supply of heat. Okay, we have good supply of solar energy. So Rajasthan or most of the state that lies on the Tropic of Cancer. Okay, there are places where we have established solar power plants. Clear? It is a pollution free energy. It is renewable source of energy. It means we don't have to take any tension to get depleted of these types of resources. Clear? Then wind power. Largest wind farm cluster lies in Tamil Nadu, Nagarcoil to Madurai, and then Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Kerala, Maharashtra, Lakshadweep and Jaisalmer. These are the places where we use wind power. Okay, so we are using windmills. Windmills are the plants and the fast blowing wind rotate the windmills, rotated blades of the windmills, and the energy that developed from the rotating blades, they get converted into the electricity by the generators. Clear? Next energy is biogas. Shrubs, farm waste, animals and the human waste, these all are used to produce biogas from domestic consumption in rural areas. ठीक है ना? हम जितने भी एनिमल वेस्ट है या ह्यूमन वेस्ट है, जो भी फार्म वेस्ट होगा, जो भी सब्स होगा, उनको हम डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करके हम क्या करेंगे, उससे हम रूरल एरियाज़ में बायोगैस लेंगे। 2 बेनिफिट्स है, एनर्जी प्लस मैन्यूर इम्प्रूवमेंट होगा। इससे क्या होगा, एनर्जी तो मिलेगी और मैन्यूर जो होगा वो भी क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? टाइडल एनर्जी। ओशियनिक टाइड्स यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब ओशियनिक जो टाइड्स होती है उसको यूज़ करते हैं जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? कैसे करेंगे? तो क्या करते हैं कि इस टाइप का एक आउटलेट होता है, ठीक है ना, आउटलेट बनाया जाता है। जैसे ही हाई टाइड होती है तो जो फ्लड गेट को खोल देते हैं। हाई टाइड्स में क्या होता है कि जो ओशन वाटर सीधा अंदर आता है, हाई होती है, स्पीड इज इंक्रीज। उस कंडीशन में ये रोटेट करते हैं टर्बाइंस को, टर्बाइन को रोटेट करते हैं। टर्बाइन क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, कन्वर्ट करेगा एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है? सो देयर इज इन गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ, बोथ आर इन गुजरात। गेंगेटिक डेल्टा सुंदरबन रीजन दैट इज इन वेस्ट बंगाल। यहाँ पे हमने क्या कर रखे हैं, अपने टाइडल एनर्जी पावर प्लांट्स लगा रखे हैं। क्लियर है? नाउ जियोथर्मल एनर्जी जनरेटेड यूजिंग हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये एक ऐसी एनर्जी है जो जनरेट करेंगे अर्थ के इंटीरियर के अंदर, जो हीट मिलती है उससे। अर्थ के इंटीरियर में बहुत गर्मी होती है, ठीक है ना, मैग्मा होता है, और लेयर जो होती है अर्थ की, जो क्रस्ट की जो लेयर्स होती है, जिसमें बहुत से पेरेंट्स रॉक्स होते हैं। जब भी ये वाटर जो सरफेस के ऊपर होता है, जो भी वाटर इन रॉक्स के ऊपर होता है, वो गर्म हो जाता है, क्योंकि ये जो रॉक्स होते हैं मैग्मा के कांटेक्ट में होती है, तो उससे ये क्या होती है, गर्म होती है। गर्म होने से सरफेस के ऊपर का जो पानी होता है वो भी गर्म होता है, और ये पानी जो गर्म होता है ये टर्न्स इनटू स्टीम। ठीक है ना? देन वी यूज दैट स्टीम टू ड्राइव टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना?
नेक्स्ट टॉपिक केवल यही अपने पास, कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी रिसोर्स। कैसे कंजर्व करेंगे? बाय प्रमोशन में एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन प्रमोट करें। इंक्रीज यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़, स्विच ऑफ कर दो इलेक्ट्रिसिटी को जब जरूरत नहीं हो। यूज़ पावर सेविंग डिवाइस यूज़ करनी चाहिए। देन यूज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ किया जाए। क्लियर हो गया? सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर जो है कैसा था ये आपको मैंने अच्छे से, इसमें डिटेल जो भी थी मैंने आपको क्लियरली समझाई है, ठीक है ना। और डिटेल समझने के लिए इसमें मैप जो होते हैं वो सारे के सारे मैप आप चेक करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। बुक में मैप हैं आपके, उन्हें देखिए आप, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। और मैं फिर कहता हूँ एंड तक इस वीडियो को देखो, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले सिरवी एकेडमी को, इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको व्यू करें। थैंक यू वेरी मच।